Activity 6 at Blackwater Pond, written by Mary Oliver. I'll read this a small poem and then I will give you explanation. At Blackwater Pond, the tossed waters have settled after a night of rain. I dipped my cupped hands. I drink a long time. It tastes like stone leaves fire. It falls cold into my body, waking the bones. I hear them deep inside me, whispering, "Oh, what is that beautiful thing that just happened?" Now, this is a poem which is written by Mary Oliver. इस पोएम का नाम है एट ब्लैक वाटर पॉन्ड. मतलब ये जो पोएट है वो एक पॉन्ड के किनारे है. वो पॉन्ड का नाम क्या है? ब्लैक वाटर पॉन्ड. कल रात बारिश हुई थी जिसके बाद में पॉन्ड का जो पानी है वो अब थम गया है, सेटल हो गया है. पोएट उसमें अपने हाथ डालती है और उसका पानी पीती है. उसका पानी कैसा है? ठंडा है. और उसने इसमें दिया है कि उसको वो टेस्ट कैसा लग रहा था पॉन्ड के पानी का, जैसे कि सब कुछ मिला हुआ हो, जैसे स्टोन लीव्स और फायर. फायर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि पानी जब ज़्यादा ठंडा होता है तो यू फील एक लहर सी उसमें उठती है. ठीक है, बहुत ठंडा पानी हो तो. उसने जब पिया तो उसकी बॉडी में वो जो कोल्ड था पानी, वो जो ठंडक थी पानी की, वो उसने अपनी बॉडी में फील की, जो कि बहुत अंदर तक उसके अंदर गई. और बोला कि अभी जो तुमने पिया वो क्या था? वो जो खूबसूरत सी चीज़ थी जो भी बॉडी में हुई वो क्या थी? आप भी अगर बहुत देर के बाद में अगर ठंडा पानी पीते हो, एकदम चिल्ड पानी पीते हो, तो यू कैन फील दैट द वाटर इज़ गोइंग inside you, deep down inside you, and you will feel that freshness which is coming from your body. Okay. Activity 7. Look carefully at Oliver's poem at Blackwater Pond. To answer these questions, there are total 5 questions given in Activity 7 which are based on the poem which is given in Activity 6. There are 5 questions given. We will look at each one of them one by one. The title at Blackwater Pond tells us that the poet is at a certain place. You have to construct a sentence for your own telling using at to write a sentence telling where you are now. I have written my example, that is a sample answer. You can write for your own. You can construct your own sentence. I am at home now. Second question. The poem says, I dip my cupped hands and drink a long time. It tastes like stone leaves fire. What tastes like stone leaves and fire? यहाँ पे पोएम में पोएटस कह रही है कि उसने अपने हाथ पानी में डुबाए और पानी पिया. उसका टेस्ट कैसा था? स्टोन लीव्स और फायर के जैसा था. तो क्वेश्चन पूछा है कि किसका टेस्ट स्टोन लीव्स और फायर के जैसा था. इसका आंसर आएगा The water of the Blackwater Pond tastes like stone leaves and fire. Question number 3. The poem says it falls cold into my body, waking the bones. I hear them deep inside me, whispering. What wakes up in the poem and what do they say when they say wake up? The answer would be bones wake up in the poem, and on waking up they say, "Oh, what is that beautiful thing that just happened?" I will be giving all the answers to the questions. I'm just explaining you right now. Fourth. Full stop or periods and question mark tells us when we are at the end of a sentence. How many sentences does at Blackwater Pond have? There are in all 6 sentences in the poem. That is the answer. Last question. Commas tell us when a sentence has more than one part. Which sentences in the poem have more than one part? So there are in all 3 such sentences in the poem. You have to write the sentences. How you will write that I will give you. Okay. Activity 8.
This task we have changed, or you can say we have modified. Now in this activity 8 you will not do this exercise which is given. Instead of that, whatever the lines are given, you have to write a poem on water. In your own words you will write a poem on water. Activity 9. Water, water everywhere. There is a passage given. We will be reading the passage, and I will be giving you hard words. Also, I will be giving you 3 extra questions which you have to do after reading this passage. How much water is there on earth? अर्थ के ऊपर टोटल कितना पानी है? There's a lot, बहुत सारा. Something like 1260 trillion liters can be found on our planet. इतना पानी, इतना लीटर पानी, ट्रिलियन पानी हमको मिलता है हमारे प्लैनेट पर. दिस वाटर इज़ इन अ कांस्टेंट साइकिल. ये जो वाटर है ये एक कांस्टेंट साइकिल के ऊपर चलता है. इट एवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशन. ओशन में से उड़ जाता है, एवेपोरेट होता है. ट्रेवल्स थ्रू द एयर. एयर में चलता है. रेन्स डाउन ऑन द अर्थ. रेन के फॉर्म में अर्थ पे गिरता है. एंड फ्लोज बैक टू द ओशन. और वापस ये ओशन में चला जाता है. द ओशंस आर ह्यूज. ओशंस बहुत बड़े होते हैं. मोस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड इन ओशन. ज़्यादातर जो अर्थ है वो ओशन से कवर्ड किया हुआ है, करा हुआ है. 98% ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट इज़ इन द ओशंस. 98% जो धरती का पानी है वो ओशंस में है. एंड देयरफॉर इट इज़ अनड्रिंकेबल. इसलिए वो हम पी नहीं सकते बिकॉज ऑफ द सॉल्ट. ओशन का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है, इसलिए हम उसका पानी पी नहीं सकते. ओनली अबाउट 2% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर इज़ फ्रेश. सिर्फ 2% जो पानी है धरती का वो ही खाली फ्रेश वाटर है, और वही हमारे ड्रिंकिंग और बाकी चीज़ों के काम आता है. बट 1.6% ऑफ द प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज़ लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. अब ये 2% में से भी 1.6% जो पानी है वो लॉक हो गया है पोलर आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स के फॉर्म में. अनदर 0.36% इज़ अंडरग्राउंड इन वेल्स. बाकी में से भी 0.36% कहाँ है? वेल्स में है, वेल्स के नीचे है. ओनली अबाउट 0.036% ऑफ द प्लैनेट्स टोटल वाटर सप्लाई इज़ फाउंड इन फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स. सिर्फ 0.036% जो है टोटल प्लैनेट का वाटर जो हमें मिलता है थ्रू लेक्स एंड रिवर्स. द स्मॉल परसेंटेज इन लेक्स एंड रिवर्स इज़ स्टिल मैनी ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स. ये स्मॉल परसेंटेज भी जो है वो काफ़ी सारे ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स है, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू ऑल द वाटर इन द होल वर्ल्ड. वैसे ये बहुत सारा पानी है, बहुत सारे ट्रिलियन ऑफ लीटर्स पानी है, लेकिन अगर हम पूरे अर्थ में जितना भी पानी है उससे कंपेयर करें तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है. द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट, that is 0.004%, is either floating in the air as clouds and water vapor or is locked up in plants and animals. जो इसका 0.004% पानी है वो या तो हवा में फ्लोट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, और या तो फिर वाटर वेपर के रूप में, या फिर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर है. डिड यू नो दैट योर बॉडी इज़ 65% ऑफ वाटर. क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी का 65% जो है वो पानी है. दैट मीन्स इफ़ यू वे 30 kilograms, 19.5 kilogram इज़ यू इज़ वाटर. अगर आपका वजन 30 kg है तो उसमें से 19.5 kg सिर्फ पानी है. क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पैसेज आर: how much water is there on the earth? Second, what cycle does the water on the earth follow? कौन सी साइकिल वाटर के अर्थ पे वाटर फॉलो करता है. हाउ मच वाटर डज आवर बॉडी कंटेन? हमारे बॉडी में कितना वाटर कंसिस्टेंसी है, कंटेंट है. ओके, ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको नहीं दूंगी, ये ऑलरेडी पैसेज में दिए हुए हैं.
You just have to find it, read the passage thoroughly, and then answer the questions. That's all. With this, we end our chapter here. Please cancel activity 10 in your textbook. Put a cross over there.